Hello viewers, I Susan Sahu, teacher in social studies. Welcome you all to class 10 history chapter number 7. Seventh chapter we are continuing print culture and the modern world. And this is part 4. So let us go through the portion. In part 4, first point we will study the 19th century. It means as we are talking about print, हम आज डिस्कशन करेंगे कि 19th सेंचुरी में प्रिंट का जो पोजीशन था, प्रिंट का जो पॉपुलैरिटी था, हाउ वाज इट एक्सेप्टेड बाय द पब्लिक, बाय द कॉमन पीपल. So here the first point it says that the 19th century saw vast leaps in mass literacy in Europe. यूरोप में इसे देखा गया 19th सेंचुरी में जो लिटरेसी रेट था बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि पार्ट नंबर 3 उससे पहले जो पार्ट में हम पढ़े थे 18th सेंचुरी का लास्ट पार्ट और 19th सेंचुरी, इसके बीच में 60% जो लिटरेसी रेट था यूरोप में 80% हो गया था. यू सी द contribution of a print towards this literacy rate. Point 2 says that it brought in large numbers of new readers among children, women and workers. तो ये जो तीन सेक्शन हैं, चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स, ये बहुत लार्ज नंबर में बढ़ने लगे. इट मीन्स दे वेर इन्वॉल्व इन रीडिंग द प्रिंटेड मटेरियल्स अवेलेबल इन देयर लोकेलिटी. So let us discuss one by one. First we'll discuss about children, print के साथ उनका क्या relation है, then regarding women, then about workers. Then first go towards the children. Hello, children, women and workers. The first one, children and print. So these children, they are in a jolly mood. As you know, dear viewers, children, they like to see the pictures, printed pictures, cartoons. They are fond of to get pleasure by looking at the images, the figures, what they like. So here for children, the European countries or the countries of different parts of the world, they have brought some new innovations. What they have done, let us go for. First, they have found out as primary education became compulsory from the late 19th century. लेट 19th सेंचुरी से प्राइमरी एजुकेशन जो है वो कंपलसरी हो गया. तो जब बच्चों को पढ़ाना, प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी हो गया सारे बच्चों को, तो क्या किया गया? चिल्ड्रन बिकेम एन इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर. ये चिल्ड्रन लोगों को अभी रीडिंग कैटेगरी में, रीडर कैटेगरी में इन्वॉल्व कर दिया गया. प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स बिकेम क्रिटिकल फॉर पब्लिशिंग इंडस्ट्री. अभी धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चों को पढ़ाने के लिए किताब तो ज़रूरी है, प्रिंटिंग मटेरियल्स तो ये पूरा कंपलसरी है. तो ये एक प्रॉब्लम हुआ लोगों के लिए, क्योंकि प्रिंटिंग मटेरियल्स बनाने के लिए जो मशीन है, जो इंडस्ट्री है, वो उतना डेवलप नहीं था. तो हमको पता है कि जब प्रॉब्लम होता है कहीं ना कहीं सोल्यूशन का रास्ता निकलता है. तो चलो देखते हैं हुआ क्या. ए चिल्ड्रंस प्रेस devoted to literature for children alone was set up in France in 1857. 1857 मीन्स 1857 में स्पेशली चिल्ड्रंस प्रेस नाम के एक प्रेस एस्टेब्लिश किया गया, जिसमें द प्रिंटिंग मटेरियल्स विच विल बी टेकन आउट फ्रॉम द प्रेस दैट विल बी ओनली फॉर द चिल्ड्रन, राइट. देन this press published new works as well as old fairy tales and folk tales. ये जो प्रेस था ये ऐसा वाला प्रिंटिंग मटेरियल पब्लिश किया, इसमें कार्टून था, उसमें मॉडर्निटी था, उसमें बच्चों को अच्छा लगने वाला वो चीज़ था, उसके साथ साथ ओल्ड फेरी टेल्स, पुराना वाला जो फेरी टेल्स होता है, फिर फोक टेल्स, उनका जो लोकली फोक जो सॉन्ग हो, जो डांस हो, इसको प्रिंटिंग मटेरियल्स के हिसाब से प्रेजेंट किया गया, राइट. तो ये रहा चिल्ड्रन के बारे में. फिर देखते हैं वोमेन सेक्शन. वोमेन को देखते हैं. Women also they played a pivotal role along with their daily work, their household work, their job sector work. In that time when they were not involved that much in job sector, however they were mostly involved in domestic works. So women section of people also they have shown their keen interest to study, to make themselves updated by going through the printing materials. चलो देखते हैं. Women and print. Women became important as readers as well as writers.
women, they were not only the readers but also they were the writers, because the level of knowledge, the understanding, the high order thinking, whatever they have, they started to present the same in the form of print. So their prints, their writings, it was also slowly and gradually it reached to the public. Penny magazines, small magazines were especially meant for women, as were manuals teaching proper behavior and housekeeping. As I told just before some time, mostly the women section of people, they were involved with domestic works, household works. So the works related to decorating the house, cooking food, designing different flowers, different corridors. So this type of books were very valuable for them. When novels began to be written in the 19th century, women were seen as important readers. Novels, it means जो कि नॉवेल्स जब लिखना शुरू हुआ 19th सेंचुरी से, वोमेन सेक्शन ऑफ पीपल वो एक इम्पोर्टेंट रीडर्स बन गए, क्योंकि पढ़ने के लिए उनको ज़्यादा समय मिलता था. तो इसलिए दे इन्वॉल्व देमसेल्व्स अलॉन्ग विद देयर हाउस होल्ड वर्क, दे इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन दिस रीडिंग वर्क. सम ऑफ द बेस्ट नोन नोवेलिस्ट जो कि वोमेन हैं, बेस्ट नोन नोवेलिस्ट, जाने ऑस्टेन, ब्रोंटे सिस्टर्स, जॉर्ज एलियट, ये सब फेमस नोवेलिस्ट हैं उस समय का. मतलब दे वेर वेरी फेमस इन द फील्ड ऑफ नोवेल. इट प्रोड्यूस्ड ए न्यू टाइप ऑफ वोमेन. रियली ये ऐसा एक सिचुएशन आया कि एक न्यू टाइप ऑफ वोमेन को वो निकाला समाज के लिए. ए पर्सन विथ विल, इंटरेस्ट के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, पर्सनालिटी के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, पावर टू थिंक. यू सी, these are the qualities developed after going through the printing materials available to the public. विल पावर बढ़ा, स्ट्रेंथ पर्सनालिटी बढ़ा, डिटर्मिनेशन बढ़ा, पावर टू थिंक, सोचने के लिए उनका माइंड डेवलप करने के लिए वो भी एनर्जी दिया. कौन? प्रिंटिंग मटेरियल्स. तो ये हो गया वोमेन के बारे में. चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला, वर्कर्स एंड प्रिंट. वर्कर्स लोगों का, उनको भी ये प्रिंटिंग मटेरियल्स बहुत प्रभावित किया था. उनका काम के साथ साथ उनका जो भी काम का साइट होता है, जो पीजेंट्स होते हैं, जो बुनाकार होते हैं, उनका खुद का काम करने के साथ साथ भी दे बिकेम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस रीडर्स. सो वर्कर्स भी अपना कंट्रीब्यूशन, अपना इन्वॉल्वमेंट इस प्रिंटिंग मटेरियल्स के साथ दिए. चलो देखते हैं कैसे दिए. वर्कर्स एंड प्रिंट. इन द 19th century, lending libraries in England became instruments for educating white collar workers. तो 19th सेंचुरी में पहले इंग्लैंड का ये एक सेक्शन ऑफ कैटेगरी जो कि वाइट कलर वर्कर्स को ये रीडिंग मानिया में या रीडिंग पब्लिक में वो ऐड किए. फिर क्या हुआ? आर्टिसंस को ऐड किया. फिर क्या हुआ? लोअर मिडिल क्लास पीपल. तो धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों का जो इंटरेस्ट था उस इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, उनका जो चाहत था उसको फुलफिल करने के लिए उनको रीडिंग करने के लिए मटेरियल्स दिया गया, प्रिंटिंग मटेरियल्स दिया गया. समटाइम्स सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास पीपल रोट फॉर देमसेल्व्स. सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास जो थे वो वर्कर्स भी खुद लिखने लगे. मतलब उनके मन में जो आइडिया था, उनका जो उनका जो परसेप्शन था, उनका जो खुद का डेडिकेशन था, ये भी वो खुद सोचने लगे कि हम भी हमारा सोच को ऐसे प्रेजेंट किए ताकि दूसरे लोगों के पास पहुँचे. आफ्टर द वर्किंग डे वाज ग्रेजुअली शॉर्टेंड फ्रॉम द मिड 19th century. धीरे धीरे जो वर्किंग डे था, जैसे कि हफ्ते में पूरा 7 days काम करते थे, तो एक डे ऑफ, जैसे कि हम कहते हैं क्या, कुछ टाइम ऑफ, जो कि हम कहते हैं शॉर्ट ब्रेक. तो ये धीरे धीरे काम का टाइम को शॉर्ट कर दिया गया. द वर्कर्स हैड सम टाइम फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन. अभी क्या किया गया? वर्कर्स लोगों को सेल्फ इम्प्रूवमेंट, खुद का इम्प्रूवमेंट करने के लिए, खुद का डेवलपमेंट करने के लिए, पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए उनको मौका दिया गया और समय तय किया गया. नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है, दे रोट पॉलिटिकल टैक्ट्स, ऑटोबायोग्राफीज इन लार्ज नंबर्स. यू सी, the workers, when they got time to develop themselves, to develop their personality, to develop their thinking pattern, the process of their lifestyle, so they started writing political tracts,
autobiographies, political tax in the form of politically how the system, political process, the administrative system, how it can be developed. Autobiography means they started to write about themselves. Self writing is autobiography. So in this way they developed in the form of writing the books or reading the books materials, print materials. Now next point we will discuss further innovations. What are the innovations it took place in that time after the printing material? By mid 19th century, Richard M. Howe of Newark has perfected the power driven cylindrical press. इसका मतलब है मिड 19th सेंचुरी में रिचर्ड एम होए जो कि न्यूयॉर्क का है, वो क्या किए, पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस एक डेवलप किए. तो इस सिलेंड्रिकल प्रेस का वो पॉपुलैरिटी इतना ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि वो इतना प्रिंटिंग मटेरियल्स प्रोड्यूस करता था जो कि मतलब सोच से बाहर, अनबिलीवेबल. तो चलो देखते हैं उसमें क्या खासियत ऐसा था उस प्रिंटिंग मशीन में. दिस वॉज कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग 8000 शीट्स पर आवर. मतलब एक घंटा में वो 8000 शीट प्रिंट कर पाता था. यू सी इन दैट टाइम, मिड 19th सेंचुरी का बात है ये. दिस प्रेस वॉज पार्शियली केयरफुल फॉर प्रिंटिंग न्यूज़ पेपर्स. ये सबसे ज़्यादा फोकस करता था कि न्यूज़ पेपर कैसे प्रिंट किया जाए ताकि जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर कंट्री, ये न्यूज़ पब्लिक लोगों के पास, आम इंसान के पास ये पहुंच सके. नेक्स्ट, फ्रॉम द टर्न ऑफ द 12th सेंचुरी, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस एक्सिलरेटेड प्रिंटिंग ऑपरेशन. तो 12th सेंचुरी, सॉरी जो 20th सेंचुरी जो हुआ, धीरे धीरे डेवलप हुआ, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन आ गया जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट हो. और उसमें क्या हुआ, ये जो एक्सिलरेट हुआ प्रिंटिंग ऑपरेशंस और 2 कदम आगे बढ़ा. तो उसमें क्या हुआ, मेथड ऑफ फीडिंग पेपर इम्प्रूव्ड. मतलब मशीन को जब पेपर भरना, पेपर को सेट करना, उसमें इम्प्रूव हुआ, थोड़ा अच्छा प्रोसेस हुआ पेपर भरना, पेपर सेटिंग करने में. और क्या हुआ उसमें, द क्वालिटी ऑफ प्लेट्स बिकेम बेटर. जो कि छापने के लिए जो प्लेट्स होता था वो और बेटर हुआ. और क्या हुआ, ऑटोमेटिक पेपर रील्स, उसमें पेपर को ऐसे सेट किया गया ताकि वो ऑटोमेटिकली वो मशीन रिसीव करेगा और प्रिंट करके वो प्रोड्यूस करेगा, आउटपुट देगा. ठीक है, वो क्या हुआ, ऑटोमेटिक पेपर रील्स रखा गया. नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स ऑफ कलर रजिस्टर्स वेर इंट्रोड्यूस. इसमें क्या हुआ, जो कि कलर प्रिंटिंग में कलर कैसे ला जा सकता, वो इसमें डेवलप किया गया. कलर प्रिंटिंग भी धीरे धीरे आने लगा मार्केट को. तो सबसे बड़ी बात यह है, इन 1920 इंग्लैंड में पॉपुलर वर्क्स वेर सोल्ड इन चीप सीरीज, जिसको को बोला जाता है शेलिंग सीरीज. तो इंग्लैंड में 1920 जो कि 20th सेंचुरी का फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट उसमें क्या हुआ, जो प्रिंटिंग मटेरियल्स को चीप रेट में बेचा जाने लगा और लोगों के पास से पहुंचाया गया, जिसको बोला जाता है शेलिंग सीरीज. एक बहुत बड़ा सीरीज था सेलिंग सीरीज, जो कि लोगों के पास पहुंचाने के लिए बहुत मदद किया. और ये जो प्रोसेस रहा धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लैंड में, और रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, डिफरेंट कंट्रीज इन विच प्रिंटिंग मटेरियल्स वेर अवेलेबल और द प्रिंटिंग आइडियाज वेर अवेलेबल, दे वर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड doing the things, and they were involved themselves in reading. This is a printed advertisement. Here you can see in the figure. In your textbook it is there, figure number 13. Advertisements at a railway station in England. उसमें क्या है ये बताया गया है, a lithograph by Alfred Konakanen 1874 का, मीन्स 19th सेंचुरी का लास्ट पार्ट का है. These are the printing materials. It is available in the railway station boards. So print machine is there, the color printing is there. So slowly and gradually the publishing, the information propagation, circulation of information or knowledge, it became easier by the 20th century. So in this way the printing materials, it was developed. So for today this is all about the portion. Once again we will meet in the next portion, next video. Till that, take care of your studies. Thank you all.